let's start here. Okay, so here in this case, what we are doing, we are specifying, hey, catch block, you will get an arithmetic exception and it will handle it. Now, my question is for you is that what we have inside a try block, can we have, is it okay to place a normal statements inside a try block? What do you think? No, right? It is not a space where where anyone can be accommodated. It is not a space that anyone normal people should be there, right? Normal line of code should not be there. There are only people means this space is only for those who is very critical, okay, who has a critical case. Are you getting this, guys? Yes. Okay, so we cannot have a normal statements here. You can place it, hey, means there is a no issue in that issue in placing like a normal code inside this, but as a developer, as a writing of code, we follow some standard. We don't, when we create application, we don't just write a code. We also follow the structure, we also follow the standards. Okay, so we know that which where we have to put particular code and where not. So that's why we are not having a try inside a try block. You will not having a normal code. Make sense? Only you have is critical statement. Fine. So now in try block, suppose I have 10 critical statements. Suppose I have 10 critical statements. Okay, to get to handle these 10 critical statements, I need 10 try blocks, right, Lucky? Of course. And every try block will have a catch block. 10 try, 10 catch. Okay, but is it a good idea to do so? Is it a good idea for every critical statement I should have different try block? No. You can have a multiple critical statements in one try as well. Make sense? Means if you have a multiple critical statements, place it in the try block. Okay, make sense, Lucky, Lena? Now, okay, you have multiple critical statements and every critical statement is giving you different type of exceptions. It is giving you different type of exceptions. Let's go and try to see what I'm trying to say here. Okay, now see here, I have created two exceptions. First, which is this line, it will give me one exception, which is exception one. Okay, and at this line I am getting two exceptions, means this is the exception two. Okay, guys, are you getting this? Means I am having a two critical statements in my try block. Okay, Lucky, समझ आया? Okay, now can you see how I'm handling this? How I'm handling this block? So see, suppose, and here when you see a catch block, I have only one try block, but here what you can see, you are having a two catch block. One is for arithmetic exception and one is for index out of bound exception, which is this exception. Okay, Lucky, ready? हाँ. Hmm. Okay, Lucky, Lina. Now we are having. I now we are having a two critical statement, two exceptions, and two catch blocks. So is it something that we our both the catch block will get executed as we have a two exceptions? नो, इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर हमारे पास दो एक्सेप्शन है तो दोनों के दोनों कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही इस लाइन पे एक एक्सेप्शन आ रहा है तो वो कहाँ पे थ्रो कर देगा? इस क्लैश ब्लॉक के पास में। समझ आया? विच इज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, है कि नहीं? ओके, तो यही से मेरा जो फ्लो है वो किस कहाँ पे चला गया? कैच में चला गया। समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है लकी आपको, दीना? जो फ्लो है, जैसे ही एक्सेप्शन आया तो एक्सेप्शन वो पकड़ के किसके पास में थ्रो कर देगा? कैच के पास में। तो मेरा फ्लो जो है वो कैच के पास में चला गया। अभी समझ आ रहा है? ओके, लीना, देखिए, तो क्या ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा होगा? ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है।
क्यों? क्योंकि यही से फ्लो मेरा कैच के बस में चला गया, तो मुझे पहले, सबसे पहले मुझे ये वाला एक्सेप्शन सॉल्व करना पड़ेगा। ये जब सॉल्व करूंगा फिर मुझे कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, तो फिर मुझे इस लाइन में कोई इशू नहीं आएगा, फिर मुझे इशू आएगा इस लाइन पे। जब इस लाइन पे इशू आएगा तो ये एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो कर देगा, फिर मुझे इसको हैंडल करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो फिर मेरा कोड चलेगा। मीन्स कोड तो मेरा आगे चलता रहेगा, जो बाकी की लाइन है वो तो एग्जीक्यूट होता रहेगा। आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट ट्राई एंड कैच। तो अगर दो ब्लॉक है तो क्या दोनों कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएंगे? नहीं, पहला वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। जब पहला एक्सेप्शन आप रिजॉल्व कर दोगे, ओके, फिर दूसरा वाला ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि अगर यही पे एक्सेप्शन आ रहा है तो क्या ये वाला एग्जीक्यूट भी हो रही होगी? नहीं हो रही होगी, बराबर है? समझ आया गाइस? हम्म। तो जब मैं इस वाले इसको सॉल्व कर लूंगा तो अब जब इस लाइन, अब वो इस लाइन पे आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है तो वो लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होगा, इस लाइन पे आएगा। इस लाइन पे आने के बाद में यहाँ पे एक्सेप्शन आया तो फिर से यही से डायरेक्ट मुझे कौन सा, क्या यहाँ से डायरेक्टली कैच के बस में एक्सेप्शन थ्रो हो रहा होगा, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, उसको हैंडल कर सकता हूँ। तो दैट इज हाउ इट गोज। मीन्स वी कैन हैव अ मल्टीपल क्रिटिकल स्टेटमेंट्स in a try block, and we can have a multiple catch blocks to handle those individual critical statements differently. That makes sense? है ना इजी लकी? है कि नहीं? नहीं यार, इजी है। इससे इजी क्या होगा? इससे इजी, इजी तो मैगी बनाना भी नहीं होता। कौन सी लाइन? कौन सी लाइन? कौन सी? सेमीकोलन बहुत है यहाँ पे, कौन सी लाइन पे? ये 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 वाली की ये वाली? ये वाला तो यहाँ पे एक्सेप्शन ऑकर हो रहा है, यहाँ पे मैं एक्सेप्शन ला रहा हूँ, यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है। समझ आया लकी? देखो लकी, बिल्कुल टेंशन मत लो, ओके? समझ आएगा। देखो, अभी हमारे पास, मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। हमारे पास क्या होता है ट्राई के अंदर? मल्टीपल, ट्राई के अंदर क्या होता है? क्रिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, बराबर है कि नहीं? अब देखो, ट्राई अगर मेरे पास 10 क्रिटिकल स्टेटमेंट्स है तो क्या उन 10 क्रिटिकल स्टेटमेंट को मैं अलग अलग ट्राई में लिख रहा हूँ? नहीं लिखेंगे। तो हम हमारे पास में एक ही ट्राई के अंदर मल्टीपल क्रिटिकल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। ओके, दैट मेक सेंस लकी टिल नाउ? ओके। अब मेरे पास दो क्रिटिकल स्टेटमेंट्स है, और जब मैं कैच के अंदर लिख रहा हूँ तो कैच के अंदर मैं क्या ऐसे लिख रहा हूँ कि यू, हे कैच यू विल गेट एन एक्सेप्शन लाइक दिस। हे कैच आई विल से, am I saying like this? Hey catch block, you will get an exception, but we are not specifying which exception we are getting. इस तरह से हम इसको हैंडल नहीं कर रहे। हम इसको हैंडल किस तरह से कर रहे हैं कैच ब्लॉक में? कैच ब्लॉक में बोल रहे हैं कि हे कैच ब्लॉक, यू विल गेट एन अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ओके, कैन यू सी हियर वी आर मेंशनिंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। So that is the one exception we will get, maybe get. And in other catch block I have said, hey catch block, you will might get another exception. First I have mentioned this exception, okay? If this not this you will not get, you will get this exception, which is index out of bound exception. Make sense lucky? So I have written a two catch block, but I have written the only one try block in which I have a two critical statement, and I am having a two catch block. So see, यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन आ रहा है, तो जैसे एक्सेप्शन आएगा तो ये कौन सा एक्सेप्शन है? ये है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। कौन सा है? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कहाँ पे जाएगा? वो वहीं पे जाएगा जहाँ पे मैंने मेंशन किया है, तो ये यहाँ पे आएगा। समझ आ रहा है? क्योंकि वो यही तो वो कैच कर रहा है ना। कैच ब्लॉक क्या कैच कर रहा है? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। क्या कैच कर रहा है? कौन सा एक्सेप्शन कैच कर रहा है? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो अगर ये एक्सेप्शन आएगा, ये थ्रो किया जाएगा। क्या किया जाएगा? थ्रो किया जाएगा। थ्रो करेगा तो वो कौन रिसीव करेगा? कौन सा कैच रिसीव करेगा? जो कैच के पैरामीटर के अंदर हमने लिखा है कि ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड लेगा, वही तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ऊपर से फेंका हुआ कैच करेगा ना। समझ आया? हमने एक इसमें बोला है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और ऊपर से हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ रहा है, तो क्या अरिथमेटिक एक्सेप्शन उसको एक्सेप्ट करेगा? करेगा नहीं, क्योंकि
वो बोलेगा कि मुझे बनाया है लेने के लिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन, मैं इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन नहीं लूंगा। समझ आई बात? लकी समझ आया? ठीक है। तो जैसे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया, तो ये एक्सेप्शन किसके पास में थ्रो किया जाएगा? ट्राई के, ट्राई ट्राई क्या करेगा, इसको थ्रो करेगा। और यहाँ पे क्या, ये सेकंड वाला कैच के पास में आएगा, किसके पास में आएगा? सेकंड वाले कैच के पास में आएगा। और इसके अंदर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं? इनवैलिड इंडेक्स ओनली प्रिंट कर रहे हैं, इनवैलिड इंडेक्स। ठीक है लकी? ओके। अब देखो, अब ऐसे समझो कि मुझे, मैं बैग जाता हूँ, बैग जाता हूँ, यहाँ पे बैग चला गया। ठीक है, ये बैग चला गया, पूरा निकाल दिया। अब मुझे इस लाइन पे कोई इशू नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पे टू लिख दिया, यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा है, नो एक्सेप्शन। ओके, नो एक्सेप्शन। अब इस लाइन में मुझे एक्सेप्शन आ रहा है, क्योंकि मैं जीरो से डिवाइड करने का ट्राई कर रहा हूँ, बी की वैल्यू जीरो है। यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, क्या आ गया? एक्सेप्शन आ गया। अब ये एक्सेप्शन कौन सा है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। कौन सा है? अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ले रहा होगा? नहीं ले रहा होगा। तो कौन सा ट्राई वाला एग्जीक्यूट होगा? इसके पास में वो क्या चला जाएगा? इंडेक्स आउट ऑफ, सॉरी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन कौन से वाले? फर्स्ट ट्राई के पास। और उसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। समझ आया? तो जो पर्टिकुलर क्रिटिकल स्टेटमेंट जो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, वही कैच के अंदर हम उसको मेंशन कर देंगे। तो अगर उस जगह पे वो एक्सेप्शन आ गया, तो वो ट्राई थ्रो कर देगा, और कौन सा कैच ब्लॉक उसको एक्सेप्ट करेगा? जिसके अंदर वो पर्टिकुलर एक्सेप्शन मेंशन है। सबसे पहले अरिथमेटिक है, तो अरिथमेटिक ही कैच करेगा। आउट ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला ही कैच करेगा। तो अब कोई ऐसे नहीं कर सकता कि, हाँ ऐसे नहीं कर सकते कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला अरिथमेटिक के अंदर घुस गया, ऐसा नहीं होता। जो पैरामीटर आपने दिया है वही तो उसके अंदर जाएगा ना। समझ में आया? लकी समझ में आया? है ना? अभी इजी है कि नहीं? इजी है। और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी है लकी, सीरियसली बहुत इजी है। और आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हो चीज़ों को, यू आर हैविंग वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। तो आप उसको समझोगे, बट आपको बस स्ट्रेस लेके नहीं करना है। ठीक है, समझोगे क्या हो रहा है, क्यों हम ऐसे कर रहे हैं ना। समझ आया? ओके चलो। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ट्राई कैच हो गया हमारा, है ना? चलो, तो हम अब नया टॉपिक लेते हैं। गर्मी बहुत हो रही है, उधर गर्मी नहीं हो रही है क्या? लेकिन हो रही है गर्मी। और इस लेक्चर की वजह से सारा बंद रखना पड़ता है ना, तो आवाज़ नहीं आता है फिर। इधर फिर से एक रिस्क है मुझे, स्क्रीन के सामने तो और भी गर्म होता है। चलो, ओके गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो, ओके, तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ अबाउट, ओके, ओके, लेट्स गो। तो जब भी हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग की अगर बात करते हैं, तो क्या क्या तरीके होते हैं, किसका यूज हमें किसका यूज करना पड़ता है एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए? ठीक है, सबसे पहला तो हम यूज करते हैं ट्राई एंड कैच, है ना? ट्राई कैच यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा हम यूज करते हैं ट्राई विथ मल्टीपल कैच, भी आप बोल सकते हो, ट्राई विथ मल्टीपल कैच। ओके। तो ट्राई कैच में एक ही सेल में लिखता हूँ। तो ट्राई कैच यूज करते हैं, और कैच जो है ना वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, यू कैन हैव अ मल्टीपल कैच ब्लॉक। सेकंड व्हाट वी कैन यूज, सेकंड यू कैन यूज ट्राई कैच थ्रो, THROW, थ्रो। देन वी हैव थ्रोज, THROWS, थ्रोज। देन हमारे पास में लास्ट होता है फाइनली। ओके, ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज, फाइनली। ओके गाइस, समझ आया? तो ये चार, इन चारों को यूज करके हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ठीक है, ट्राई हो गया, कैच हो गया, थ्रो, थ्रोज और फाइनली। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, फाइनली पूछा जाता है बहुत ज़्यादा केसेस में, जो है ना फाइनली, यानी वैसे तो सारे कुछ सारी ही चीज़ें पूछी जाती हैं, बट हम इन चारों को यूज करते हैं किसके लिए? एक्सेप्शन हैंडलिंग हैंडल करने के लिए, ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज, फाइनली। ओके। तो ट्राई कैच तो हमने देख लिया, वी हैव
डन विथ ट्राई कैच। ट्राई कैच के अंदर सिंगल ये भी हो सकता है, यानी सिंगल कैच ब्लॉक, मल्टीपल कैच ब्लॉक, दैट वी आर। ओके, अब जो है ना, अब हम आते हैं थ्रो के ऊपर। क्या करते हैं, थ्रो के ऊपर आते हैं। अब इतना इजी है, इतना इजी है ना, बहुत इजी है, इसको समझना बहुत इजी है। चलो, अब मैं एक कोड लिखता हूँ विच इज डिवाइड। तो लेट्स से void div, इसके अंदर इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। ओके, दैट मेक्स सेंस। और अगर यहाँ पे b की a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 0 है। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे, अब मैं कर रहा हूँ इंटीजर। yellow is not look pretty good here, let's change it to something. So integer answer is equal to a divided by b। तो यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, एक्सेप्शन आ रहा है। हियर वी विल गेट द एक्सेप्शन गाइस। ओके, ओके गाइस। और यही से एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, अगर आप ट्राई, ऑफ कोर्स वी विल राइट हियर ट्राई एंड कैच। ओके, वी विल पुट दिस इन ट्राई एंड हियर वी विल हैव अ कैच। आप एक्सेप्शन ऐसे भी लिख सकते हो, एक्सेप्शन ई एक्स की फॉर्म में। वो अभी स्पेसिफाई नहीं किया हमें कौन सा एक्सेप्शन है। आप यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं लिख ही लेता हूँ क्योंकि हम जैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल लेता हूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन, दैट इज द एक्सेप्शन यू आर गेटिंग। ई एक्स, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। चलो पूरा ही लिख लेता हूँ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई एक्स की फॉर्म में इसको कैच करो। ठीक है, और इसके अंदर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऐसे कुछ कर लेता हूँ, कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, cannot divide by 0। So that is what we have, what I have printed here। okay, ठीक है, छोटा सा प्रोग्राम है। अब होता क्या है कि एक्सेप्शन जो है ना, वो यहाँ से ऑकर होता है। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हमारा एक्सेप्शन ऑकर होगा, और वो ट्राई किसके पास में थ्रो करता है, कैच के पास में। समझ में आ गया? ओके, ओके गाइस, दैट मेक सेंस लकीली ना, है ना। और इसको फिर हैंडल किया जाता है ना। अब जा आते कोड के अंदर, लेट्स कम इनसाइड कोड। तो हम कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं, देखो। क्योंकि अभी जब हम इसको, मैं पहले कोड के अंदर दिखाता हूँ, तभी आपको वो सेंस बनाएगी चीज़ें। ठीक है, और इजी है, डोंट वरी, इट्स इजी, वेरी इजी, है ना। मैगी बनाते हैं ना, उससे भी इजी है। अब एक्चुअली इशू ऐसा है कि मैगी हम बहुत बार बना चुके हैं, तो हमें वो हार्ड नहीं लगता है। बट अब पहली बार करें तो हमें हार्ड लग रहा है ना। तो आप करते रहोगे तो आपको हार्ड नहीं लगेगी ये चीज़ें। चलिए, तो मैं आपको थ्रो कीवर्ड के बारे में बताता हूँ। थ्रो, तो थ्रो जो कीवर्ड है ना, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे रिकर्जन पड़ा हुआ, तो इसको निकाल देता हूँ मैं। आई विल जस्ट रिमूव दिस थिंग फ्रॉम हियर। ओके, लेट्स रिमूव दिस फ्रॉम हियर एंड रिमूव दिस एज वेल। ओके, बहुत इजी है, वैसे बहुत इजी है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैटिक। ऑफ कोर्स स्टैटिक लगाना पड़ेगा, बिकॉज स्टैट मैं मेन से इसको कॉल करूंगा, और मैं सेम क्लास के अंदर कोड लिख रहा हूँ, तो स्टैटिक से नॉन स्टैटिक फंक्शंस को कॉल नहीं जाता। स्टैटिक वॉइड डिवाइड, दैट इज व्हाट आई विल राइट हियर, एंड हियर I will write integer a comma integer b। Okay, that's fine, and I am writing integer answer is equal to a divided by b, so I will pass b is equal to 0। okay, 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 so b a divided by b, that makes sense now here। Now let's go here, I will call divide, let's call 10 comma 0। okay, so I'm calling this divide with b is equal to 0, we will get exception। Now what will happen, is anything wrong happen here? So I have written, sorry, 0 to, let's mark here 0। okay, so this is the code we have here, we will get the exception। okay, here we will get the exception, but what throws says, what actually the use of a throw, hey, you can check some conditions। आप क्या कर सकते हो, अब देखो यहाँ पे आप कुछ conditions नहीं चेक करो, you are not checking any conditions। आप कुछ conditions चेक कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अभी तो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है, और बहुत स्मार्ट कार्स भी आ रही है। तो
हमारे कुछ मॉडर्न कार, अब तो इंडिया में ये बहुत कम, मुझे पता नहीं कि होता है कि नहीं, बाहर ये चीज़ें होती रहती है। इंडिया में भी बहुत कम कार्स होगी जो ये इम्प्लीमेंट करते हो, मे भी, मुझे पता नहीं इसके बारे में, बट बाहर ये चीज़ें बहुत ही अवेयरनेस है इसके बारे में, कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो, और जब आप लॉन्ग ड्राइव करते हो तो, और आपका स्पीड भी अच्छा खासा है, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो मॉडर्न कार के अंदर आपके स्क्रीन के ऊपर सामने में दिखा रहता है कि आपका जो है ना, आपका इंजन टेम्परेचर कितना है, आपका टायर का टेम्परेचर कितना है। समझ आया? क्योंकि अगर टायर ज़्यादा ही गर्म हो जाएंगे तो वो फट सकता है, और फटने से एक्सीडेंट भी हो सकता है, बराबर है ना, है कि नहीं? तो बहुत बहुत कुछ बहुत सारे कार्स है जो मॉडल्स है जिनके अंदर हमें वार्निंग दिया जाता है कि नहीं, आपका कार का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कुछ हो सकता है। समझ में आ रहा है? प्लीज रुक जाओ, थोड़ा रेस्ट ले लो, गाड़ी को थोड़ा बंद कर दो। है कि समझ में आ रहा है? आपका कार का टेम्परेचर, सॉरी, जो टायर का टेम्परेचर है, इट इज गोइंग, इट इज बीइंग लाइक अ वेरी क्रिटिकल केस। आप इसको रोक दो, नहीं तो एक्सेप्शन आ सकता है या फिर कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो एक्सेप्शन आने से पहले ही वो आपको एक नोटिफाई कर देता है, बराबर है? समझ में आया कि कुछ ना कुछ हो सकता है, आप रुक जाओ, आपने कुछ गलती किया है, रुक जाओ। समझ आया? तो उसी तरह से जो वार्निंग थ्रो किया जाता है मशीन के जरिए हमें, कि कुछ ना कुछ होने वाला है, आप ये कर रहे हो, इसकी वजह से ये हो रहा है, वो ऑन कर देता है। तो उसी तरह से जो नोटिफाई करता है ना हमें, वही होता है थ्रो। तो हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं। कंडीशंस यानी, मैं यहाँ पे चेक करूंगा, अगर मुझे बचना है, मुझे अरिथमेटिक एक्सेप्शन से बचना है, ओके, तो अगर मुझे अरिथमेटिक एक्सेप्शन से बचना है, तो व्हाट आई कैन डू, ओके, लिसन वेरी केयरफुल। तो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ इफ, और मैं बोलता हूँ अगर बी की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाता, तो ये मेरा एक केस बन गया। समझ में आया? इट इज बीइंग वन ऑफ द केस। समझ आया गाइज? इज इट मेकिंग सेंस? ओके, तो क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक और छोटी सी चीज इंप्लीमेंट करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं ट्राई लिख देता हूँ, ओके, क्योंकि ट्राई लिखा हूँ। अब ट्राई के अंदर मैं करूँगा, आई विल राइट इंटीजर आंसर इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। ओके, दैट इज फाइन। अब देखो यहाँ पे ये जो क्या ट्राई, क्योंकि ये क्रिटिकल स्टेटमेंट है, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू पुट दिस क्रिटिकल स्टेटमेंट इनसाइड अ ट्राई ब्लॉक। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल चेक कि क्या कुछ एक्सेप्शंस आने आ सकते हैं, कुछ कंडीशंस बन रही है कि जिसकी वजह से एक्सेप्शंस आ रहे हैं, क्या मेरे इनपुट्स की वजह से या फिर कोई भी रिसोर्सेज की वजह से कुछ है जिसकी वजह से एक्सेप्शंस आ रहा है। एक्चुअली ये लाइन पे एक्सेप्शंस आएगा, बट इसको, ये लाइन पे एक्सेप्शन आने से पहले ही क्या हम नोटिफाई कर सकते हैं कि नहीं एक्सेप्शंस आ सकता है, आप ये मत करो। तो उसके लिए हम एक कंडीशन लगा लेते हैं इसके ऊपर, इफ अगर बी की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगी, तो ये केस हो गया जहां पे एक्सेप्शन आ सकता है, बराबर है कि नहीं लकी? लेना। तो हम क्या करेंगे, अगर बी की वैल्यू जीरो होगी ना, तो हम थ्रो करेंगे, क्या करेंगे, थ्रो। आई विल राइट थ्रो। ओके, अब अभी हमें क्या थ्रो करना है, हमें एक्सेप्शन थ्रो करना है, कि अगर बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो थ्रो कर दो। इससे पहले तो ट्राई खुद ही उसको देख रहा था, ट्राई अगर एक्सेप्शन आ जाएगा तो वो कैच के बस में थ्रो कर देगा। बट हम कुछ कंडीशंस लगा के भी ये कर सकते हैं कि, ओके, एक मिनट, ओके गाइस, हाँ, तो हम कुछ कंडीशंस लगा के भी ये कर सकते हैं कि अगर ये बी की वैल्यू जीरो हो जाए तो यही से थ्रो कर दो, क्या थ्रो कर दो, एक्सेप्शन थ्रो कर, सो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। समझ आया व्हाट वी आर डूइंग हियर? सो थ्रो का मतलब क्या होता है? थ्रो इज अ कीवर्ड व्हिच इज यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन, यू कैन थ्रो एक्सेप्शन। समझ आया? तो यही से एक एक्सेप्शन थ्रो हो रहा होगा। अगर बी की वैल्यू जीरो है तो यही से एक एक्सेप्शन थ्रो होगा। अब थ्रो होगा तो वो किसके पास में जाएगा, कैच के पास में जाएगा, तो हम यहाँ पे कैच लिखते हैं। और कैच के अंदर क्या लिखेंगे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई एक्स। कुछ भी लिख सकते हो आप, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऐसे भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे अरिथमेटिक ई एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। और इस कैच ब्लॉक के अंदर मैं उसको हैंडल कर लेंगे, तो मैं लिखता हूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन डॉट प्रिंट स्टैक स्ट्रेस। ओके, तो प्रिंट स्टैक स्ट्रेस भी हमने यूज किया है। प्रिंट स्टैक स्ट्रेस क्या करेगा, इट विल जस्ट प्रिंट दैट एक्सेप्शन, दैट इज ओनली थिंग ही विल डू, it will do। Okay, now let's try to understand this question, and ये कैसे काम करेगा। Okay, let's try to
हैव इट हियर। और ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है या इजी सा कंसेप्ट है, आपको कुछ नहीं। थ्रो कीवर्ड एक्चुअली हम डायरेक्टली थ्रो कर सकते हैं एक्सेप्शंस को। अगर कुछ कंडीशंस अराइज हो जाती है तो एक्सेप्शन आने से पहले ही हम थ्रो कर सकते हो पहला कुछ पर्टिकुलर एक्सेप्शंस, जो कि अगर वो प्रोसीड हो गया तो आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 0 है, तो ओके नाउ दैट्स फाइन। अब ट्राई के अंदर सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरी बी की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो एक्सेप्शंस ऑकर करेगा ही करेगा। तो मैं यही से क्या कर दूंगा, थ्रो कर दूंगा। क्या? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये थ्रो जो है, ये जो एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ ये जनरेट नहीं हुआ है एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन आने से पहले ही मैं थ्रो कर दे रहा हूँ कि एक्सेप्शन आ रहा है। समझ में आ रहा है? एक्सेप्शन तो एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे ए बी डिवाइड बाई बी कर रहा हूँ, बट मैं कुछ कंडीशन चेक कर सकते हो। अगर बी की वैल्यू 0 होगी तो यही से एक्सेप्शन थ्रो कर दो, तो यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो हो रहा होगा कैच के पास, और वो उसको प्रिंट कर देगा ई एक्स डॉट प्रिंट टेक्स्ट ट्रेस। समझ में आया? एक्सेप्शन यहाँ पे ऑकर होगा, बट मैंने कंडीशन चेक की कि अगर बी की वैल्यू 0 हो जाए तो यही से थ्रो कर दो एक्सेप्शन, ये करो ही मत। समझ आया गाइस? ओके। तो यहाँ पे मैं थ्रो कर रहा हूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन ये यहाँ पे कैच भी कर रहा हूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा? अब क्या ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी? आंसर वाली होगी ही नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन आ जाएगा तो पहले ही मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको रिजोल्व करना पड़ेगा। क्योंकि मैं बी की वैल्यू पहले ही चेक कर ले रहा हूँ कि अगर वो 0 है तो यही से एक्सेप्शन भेज दो। आंसर को कैलकुलेट ही मत करो, क्योंकि एक्सेप्शन आएगा ही आएगा, तो आंसर क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? पहले चेक कर लो। अगर बी की वैल्यू 0 नहीं होगी तो फिर डायरेक्टली इसको, अगर बी की वैल्यू 0 होगी तो डायरेक्टली कैच के बस में जाएगा, कैच उसको कैच कर लेगा, और फिर हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट टेक्स्ट स्ट्रिंग्स। इसको देख लेते हैं। तो ये वाली लाइन ना हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा, यही से हमारा जो है ना थ्रो करेगा यहाँ पे एक्सेप्शन। इसको अगर रन किया जाए, लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड लेट्स सी। इट्स इजी। ओके, तो आप देखो क्या आएगा इसी लाइन से। तो यहाँ पे मैं लाइन नंबर भी लिख लेता हूँ, अगर आपको एक कंफर्मेशन चाहिए। जहां से एक्सेप्शन आएगा ना वहां से तो मेरा कोड चलेगा नहीं, यही से क्रैश हो जाएगा। तो इससे पहले ना, ओके, तो इससे पहले व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट प्रिंट इट। व्हाट आई विल प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन नंबर 31। सो लाइन नंबर क्या है मेरा, यहाँ से लाइन नंबर 32, 32 लाइन नंबर है। तो अगर ये एग्जीक्यूट होता है, इसका मतलब लाइन नंबर 32 एग्जीक्यूट हुआ है, और 32 के बाद में जैसे ही एक्सेप्शन आया तो ये थ्रो कर दिया कैच के पास। तो उसके बाद में कुछ एक्सेप्शन, उसके बाद में कुछ मेरा आउटपुट नहीं आ रहा होगा। तो अगर इसको रन करें, if you will run this, so now what you are getting line number 32। यानी जब जब वो if के अंदर गया, देखो यहाँ पे मेरी बात को थोड़ा सुनना अच्छे से, ठीक है? इसी है वैसे। यहाँ पे देखो, जैसे वो if के अंदर गया, if के अंदर b के लिए 0 है, तो b के लिए 0 में सिस्टम डॉट आउट प्रिंट क्या कर रहा हूँ, लाइन नंबर 32 विच इज दिस लाइन प्रिंट, और यही से एक थ्रो हो रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। पहले लाइन नंबर 33 से ही मेरा एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, और 33 एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि वहीं से थ्रो कर रहे हैं हम एक्सेप्शन, और फिर वो कैच ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी उसको हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यू विल गेट अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो उसको हम प्रिंट कर रहे हैं, ओनली वी आर ओनली प्रिंटिंग इट। ओके, हम उसको क्या कर रहे हैं, ओनली प्रिंट ही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं। सो दैट इज वी आर डूइंग ओनली। सो कैन वी राइट कैन नॉट डिवाइड बाय 0, कैन वी हैव हियर समथिंग। ओके, तो ई एक्स डॉट गेट लोकलाइज मैसेज समथिंग लाइक दिस। ओके, बट इसको फिलहाल अभी रहने देते हैं। आप कंफ्यूज हो गए तो हम इसको नहीं देखने होंगे। कस्टम एक्सेप्शंस के बारे में हम बात करेंगे, तब इसको अच्छे से देख रहे होंगे कि हाउ यू कैन यूज अ कस्टम एक्सेप्शंस। ओके, ओके गाइस। सो ये होता है हमारा थ्रो कीवर्ड। समझ में आया? ट्राई, कैच, थ्रो, दिस इज द थर्ड कीवर्ड। दिस इज द सॉरी, ट्राई, कैच, ट्राई कैच तो साथ में लगता है, आप उसको अलग अलग यूज नहीं करते हो। ट्राई कैच हो गया सबसे पहले, दूसरा होता है थ्रो। तो यही से हमारे, तो थ्रो कीवर्ड क्या करता है, थ्रो कीवर्ड इज यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन। आप किसी भी पर्टिकुलर लाइन पे थ्रो कर सकते हो एक्सेप्शन। एक्चुअली यही लाइन पे एक्सेप्शन आएगा और वो फिर वो थ्रो करेगा, इसकी आप वेट नहीं कर सकते। आप किसी भी लाइन पे एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर हो जाती है, अगर आ जाती है, तो उसी लाइन से आप एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हो। दैट मेक सेंस लकी? मयूरी, आपको समझ में आ रहा है? कुछ ही प्रॉब्लम है इसके अंदर?
हम्म। ओके, दैट इज ग्रेट। तो यहाँ पे मैं लगता हूँ, सॉरी, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। ओके, इसको अगर रन करें, डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। हम्म। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ जो है ना, अब ये मैं निकाल देता हूँ, आई विल जस्ट रिमूव दिस वन। अब देखो नॉर्मल, देखो कि नॉर्मल इस कोड को देखोगे नॉर्मली कैसा काम कर रहा है। एक्चुअली जब बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो मैं प्रिंट कर दूंगा लाइन नंबर 32 एंड देन राइट आई विल थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो अगर इसको रन करें, सो व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द आउटपुट यू विल गेट, यही से एक्सेप्शन आ रहा है और इसके अंदर हम उस एक्सेप्शन को ही प्रिंट करें, वी आर प्रिंटिंग दैट एक्सेप्शन ओनली। ओके, अब यहाँ पे अगर आओगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, हियर यू आर गेटिंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन, राइट? समझ आया लकी? व्हाट यू आर गेटिंग, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, मेक सेंस? व्हाट यू आर गेटिंग, अरिथमेटिक। अब जो दुकान पे बैठने वाला इंसान है, जो कि कपड़ों की शॉप है, जलेबी की दुकान है, मिठाई की शॉप है, केक की शॉप है, वहां पे जो कर रहा है उसको पता है कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या है। उसने डाल दिया गलती से। ओके, क्या उसको अरिथमेटिक एक्सेप्शन पता है क्या है? उसको पता समझ में आएगा कि मैंने क्या गलत किया है? क्या वो अपनी गलती को सुधार पाएगा? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अरिथमेटिक एक्सेप्शन सबको समझ में थोड़ी आएगा। ये तो आपको समझ आएगा ना अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या होता है, दुकान पे बैठने वाले, गल्ले पे बैठने वाले आदमी को तो नहीं समझ में आएगा। समझ आया? तो उसके लिए हम कुछ कस्टम मैसेज भी दिखा सकते हैं, जिस जो पढ़ के यूज, उसको बोलते हैं हम यूजर डिफाइंड मैसेज या फिर यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ओके, हम कुछ कस्टम मैसेज दिखा सकते हैं कि जो यूजर को समझ में आएगा कि अच्छा मैंने क्या गड़बड़ किया है। तो उसको करने के लिए यहाँ पे जब मैं ये देखो, ये क्या है, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, ये क्या है, क्लास ही तो है। इसको अगर इस पे हवर करके क्लिक करोगे तो ये क्या है, ये क्लास ही तो है, क्लास अरिथमेटिक एक्सेप्शन, दैट इज एक्सटेंडिंग रन टाइम एक्सेप्शन, बट फॉर नाउ इग्नोर दिस रन टाइम एक्सेप्शन। अब अरिथमेटिक एक्सेप्शन ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है, समझ में आया? अब देखो ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, दिख रहा है? कैन यू सी दिस गाइस? दिस इज कंस्ट्रक्टर। देखो सेम नेम एज दैट ऑफ अ क्लास नेम। समझ आया लकी लीना? तो एक तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एक तो अरिथमेटिक कंस्ट्रक्टर है जो कि डिफॉल्ट है, जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, बराबर है कि नहीं? है ना मयूरी? समझ आया? मयूरी, लकी, समझ आ रहा है? अब ये कंस्ट्रक्टर है, देखो इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। दूसरा कंस्ट्रक्टर है जो एक स्ट्रिंग ले रहा है, कैन यू सी इट इज टेकिंग सम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, एंड मैं यहाँ पे एस लिखा हूँ, इसको मैसेज बोल सकते हैं। अब ये रीड ओनली है, तो रीड ओनली को मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता, बिकॉज ये रीड ओनली बना रखा है डेवलपर्स ने। डेवलपर्स बिल्कुल नहीं चाहते कि हम इनके अंदर छेड़छाड़ करें, बट ये मैसेज है, कुछ लेता है स्ट्रिंग। तो जब यहाँ पे ये क्या है, ये एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, और यहाँ पे ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर ही है ना, ये कंस्ट्रक्टर है कि नहीं? तो अगर हम कुछ वैल्यू नहीं पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। बट अगर मुझे कुछ मैसेज भेजना है, देखो दूसरा है स्ट्रिंग, एक एस ले रहा है स्ट्रिंग, तो अगर कुछ मैसेज भी डालना है, कुछ यूजर डिफाइंड मैसेज मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैनॉट कैनॉट डिवाइड बाय जीरो। ये बात समझ आया? हम्म। अब ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ से मैं स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, तो अब ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन के अंदर कौन सा वाला कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर ये वाला कॉल होगा। समझ आए? समझ में आ रही है बात? ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, अभी मेरा अगर रन करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, एक मैसेज दिखेगा जो कि यूजर डिफाइंड होगा, कि यूजर को समझ में आएगा कि अच्छा क्या गलती हुआ है। ओके, अगर इसको रन करें तो नाउ व्हाट यू विल गेट, हे, क्या कुछ नहीं हुआ है, होना चाहिए कुछ, रन नहीं किया क्या मैंने? तो कैनॉट डिवाइड बाय जीरो, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर, एवरीथिंग इज फाइन, लेट्स रन नाउ वंस अगेन। आना तो चाहिए। ओके, सो व्हाट यू कैन सी हियर गाइस, देखो कैनॉट डिवाइड बाय जीरो आ रहा है, एक यूजर डिफाइंड मैसेज। हम्म। अब
ये तो मैंने ले रहा है, ये और भी सिंपल लैंग्वेज में डाल सकते हो अगर किसी को इंग्लिश भी नहीं आती है। जीरो से डिवाइड नहीं करते, ठीक है। ओके चलो अभी देखते हैं कि जीरो से डिवाइड नहीं करते ऐसे होता है क्या। क्या रहा है, जीरो से डिवाइड नहीं करते, समझ आया। अब ये नहीं करते वो तो अगर उस इंसान को समझाने जाओगे तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, और उसको थोड़ी समझ में आता है कि जीरो से डिवाइड क्यों नहीं करते। उसके लिए तो फिर पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वो हम नहीं कर रहे होंगे, हम उसको बोल देंगे कि अच्छा जीरो से डिवाइड नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं वो हमें पता है कि नहीं लगी। समझ में आ रहा है। तो दिस इज व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ अवर थ्रो कीवर्ड। तो देखो मैं एक दिन में एक ही बता रहा हूँ आपको, दो तीन चीजें बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। एक दिन में एक समझोगे, फिर आगे गाड़ी बढ़ेगी, ठीक है। समझ आ रहा है, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना, एक दिन में एक कंसेप्ट देखो समझो, खुद प्रैक्टिस करो, उस पे मनन चिंतन करो, कुछ इशू होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछो। अगर मैं, वैसे तो लोग एक ही दिन में पूरा पढ़ा लेते हैं, ट्राई कैच थ्रो थ्रोस फाइनली, ठीक है, बट दैट इज नॉट गुड आइडिया टू डू। आई थिंक हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो, ओके, ठीक है कि नहीं। धीरे धीरे पढ़ो बस सही समझ के पढ़ो, सही करके समझो। अब आंसर को प्रिंट भी कर सकते हो, सिस्टम ऑफ डॉट प्रिंट आंसर। अभी अगर नीचे से मैं 10/2 पास करता हूँ तो एक्सेप्शन आ ही नहीं रहा होगा, ये तो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा और आंसर को प्रिंट कर देंगे। तो एक्सेप्शन अभी इन केस में नहीं आ रहा होगा मुझे, ठीक है, क्योंकि ठीक है लीना मयूरी लकी। अब देखो इस केस में मुझे कोई कोई नहीं आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है, ओके। सो दैट इज हाउ वी यूज द थ्रो। तो थ्रो का यूज करके आप एट पर्टिकुलर पॉइंट पे भी एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो। उस पॉइंट पे एक्सेप्शन नहीं आ रहा है बट आप थ्रो कर सकते हो, अगर पर्टिकुलर कंडीशन इनपुट को चेक कर गया, कुछ इनवैलिड हो गया है तो वहीं से आप एक्सेप्शन को थ्रो कर दो। वेट नहीं करोगे कि जब उस लाइन पे जाएगा, जब एक्सेप्शन ऑकर होगा तभी थ्रो कर देंगे, ऐसा नहीं होता। यानी तभी थ्रो हो रहा होगा, वेट नहीं करेंगे। अगर हमें मिल रहा है कुछ इनवैलिड जिसकी वजह से एक्सेप्शन आने ही वाला है तो वहीं से थ्रो कर दो, नीचे वाली लाइन पे जाने की क्यों वेट कर रहे हो। समझ में आया, है ना लकी। दैट इज थ्रो, ओके। अब मैं आपको, कितना टाइम है, 2 मिनट है तो मैं आपको बता देता हूँ। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। एक होता है थ्रो, एक होता है थ्रोज। थ्रोज का मतलब क्या होता है जो कि हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अब तो कल तो संडे है कि नहीं, संडे यानी